चलो राजे अगे स्टार्ट करते हैं। थर्ड थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म फ्रैशमैन थ्योरम कह देंगे हैं एच ते के। थर्ड थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म, थर्ड थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म। राजे एक चीज़ मैं कहनी सी, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਲਜਬਰਾ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਅਲਜਬਰਾ 'ਚ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਤੱਕ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਚੈਪਟਰ ਅਲਜਬਰਾ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਕਦੋਂ ਪੇਪਰ ਆ, ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ 1-2 ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਬਸ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ। ਅਲਜਬਰਾ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ 18 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਅਟੈਂਪਟ ਹੁੰਦਾ ਅਲਜਬਰਾ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ, ਐਤਕੀ ਵੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਲਜਬਰਾ 100% ਕਰਵਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਲਦੀ 'ਚ ਹੋਈ, ਅਲਜਬਰਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਨੇੜੇ ਆਏ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ, ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗਿਆ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਅਲਜਬਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਥਿਊਰਮਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ 10 ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਪਏ ਆ। ਹਰੇਕ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਡ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਥਿਊਰਮ ਅੱਡ ਦੀ ਆ, ਕੱਲਾ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੇਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ 1-2 ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। 1-2 ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਲਜਬਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਲਜਬਰਾ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਟੋਪਰ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਟੋਪਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ 2-4 ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਆਈ, ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਸਟ ਉਹ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਆਇਆ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਈਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ 100% ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ 'ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਅਲਜਬਰਾ 'ਚ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 18 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਅਟੈਂਪਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ 18 ਦੇ 18 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਾਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਨਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਰਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਰਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨੋਟਸ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਗਏ ਆ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ 100% ਅਲਜਬਰਾ ਕਰਾਇਆ, 100% ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਂ 100% ਅਲਜਬਰਾ 100% ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ 100% ਕਰਵਾਈ, ਅਲਜਬਰਾ ਹਾਫ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਆਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਥਰਡ ਥਿਊਰਮ ਔਨ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਟਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਤੇ
जिवें कह लो कि थोड़े जे स्टूडेंट थोड़े जो यहो जे होणगे जिहड़े उहनूं पढ़ना चाहणगे वो पढ़ लैण, जिन्होंने ये है भी असी पूरे नंबर लैणे आ। वैसे जिथों तक मैनूं याद है मैं रिंग थ्योरी का एक क्वेश्चन तो तैयार करवाता सीगा पिछले साल भी, तो उस हिसाब नाल एक क्वेश्चन तो ऐतकी भी आप कर सकते हैं। सो फिर 24 नंबर का मटीरियल तुहाडे कोले हो जाता। पर कुछ स्टूडेंट है जिहड़े मान लो वो पर मेन फोकस तुसीं इहदी पहली यूनिट ते ही रखना अलजबरा दा, भी फस्ट यूनिट थोड़ी पूरी अटैम्प्ट हो जाए। तो इदां तैयार करनी है भी उहदे चों कुछ भी ना रहे, 18 मतलब 18 के 18 नंबर थोड़े आ, बस इस तरीके नाल तैयार करनी है। तो सैकेंड यूनिट तो आप बहुत माइनर जा मन के चलना। हाँ कुछ स्टूडेंट है जिहड़े कहणगे भी असीं सैकेंड यूनिट भी करनी है, चलो वो कर लैणगे। वो मेरी सलाह यह है ज़्यादातर स्टूडेंट जिहड़े एवरेज स्टूडेंट आ, ਜਿਹੜੇ थोड़े ਜਿਹੇ हैगे आ भी असीं तां करनी होई आ, असीं तां 100% ही तैयार करते होंगे, असीं 100% ही अटैम्प्ट करते होंगे, हुंदे आ एक दो स्टूडेंट वो कर लैण। ਜਿਹੜੇ जिन्हां दा आए आ भी ठीक आ ठीक ठाक नंबर लैके अगे जाना, वो तां रिंग थ्योरी वाल रहण ही देण, ठीक है, वो तुहाडी मर्जी है। खास तौर पर जिन्हां ने MSc नहीं करनी अगे जाके वो तो रहण देण, ठीक है। बाकी तुहाडी इच्छा अपनी, तुहानूं भी पता भी जे ज़्यादा अटैम्प्ट करांगे ज़्यादा नंबर मिलते आ, पर इस वास्ते ज़्यादा प्रिपेयर भी करना पऊगा, वो चीज़ तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है, ठीक है। चलो आप शुरू करिए थर्ड थ्योरम आइसोमॉर्फिज्म। इफ H and K are both normal subgroups of a group G such that H contained in K, then K quotient H is normal in G quotient H, and एक और चीज है G quotient K is isomorphic to G quotient H, K quotient H। राजे ये स्टेटमेंट है थर्ड थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म। जिवें अपने कोले H ते K नॉर्मल सब ग्रुप दिते हुए आ किदे G दे, पर H है जिहड़ा K च कंटेन करदा, मैं कल भी तुहानूं कहा सीगा K की है सब ग्रुप G दा, H की है नॉर्मल सब ग्रुप G दा, H G दे अंदर चला जाऊगा उहदा ही बनदा जाना, इहदा मतलब H K दा नॉर्मल सब ग्रुप बन जाऊगा सिर्फ कंटेन होने करके। सो K क्वोशंट H ये जिहड़ी चीज़ है ये लिखी हुई है मीनिंगफुल है, ठीक है। सो मीनिंगफुल है, उस तो बाद ये कहते हैं प्रूव करो कि K क्वोशंट H इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G क्वोशंट H। ਇਹਦਾ एक प्रॉपर प्रूफ हैगा वा, ਇਹਨੇ नहीं कीता, पर ਇਹਦਾ प्रूफ है ਜਿਹੜਾ ਇਹ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਤੀ ਥਿਓਰਮ। ਇਹ ਥਿਓਰਮ हैगी है 3.2.5, क्योंकि मैनू आए आ भी नेमिंग थ्योरमां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ मैं करवाउणीਆਂ। 3.2.5 है, बस एक चीज़ याद रखियो, जे K G का नॉर्मल आ तो K क्वोशंट H G क्वोशंट H जो नॉर्मल होंदा। सो ये वास्ते की है, इसका मतलब ये जो पूरा ये नीचे वाला सैट आ सर्कल च लिखा होया ये की है नॉर्मल सब ग्रुप हो जाऊगा, इसका मतलब ये नॉर्मल सब ग्रुप आ, सो ये पूरा क्वोशंट लिखा जा सकता, ये भी मीनिंगफुल आ। उस तो बाद K तो G च नॉर्मल दिता ही होया, ये भी मीनिंगफुल आ। सो सारा कुछ जो भी लिखा होया वो मीनिंगफुल हो गया। तुसीं ये जिहड़ी प्रूफ है इत्थे इहने नहीं कीता होया, जित्थों तक मैनूं लगदा नहीं कीता होया, बाय थ्योरम लिखता। तो आपां ये करदे आ इहदे विच प्रूफ कर दिंदे आ, जिवें थ्योरम च थ्योरम 3.2.5 च कीता होया H इज नॉर्मल। एक मिनट वेट करो, चलो आप ये कर दें प्रूफ, नाले थ्योरम 3.2.5 भी बिच ही प्रूफ हो जूगी, ठीक है। वो मैं अलग तो प्रूफ नहीं करवाऊँगा, ये प्रूफ कर दूंगा, तो तुम पेपर च भी ये कर देनी है। ये नेमिंग थ्योरमां थोड़ियां जिहियां लेंथी आ राजे, तां ही इन्हां दा टाइम ज़्यादा लगी जाता। हुण जो कुछ दिता होया है मैं इहनूं हटाउण लगा, तुसीं बुक तो स्टेटमेंट देखते जाओ ते नाल नाल करदे जाओ। अच्छा, सब तो पहला जो जो चीज़ां लिखियां हुई वो चीज़ां आपां चैक करनियां। आपां प्रूफ की करना, G क्वोशंट K इज आइसोमॉर्फिक टू G क्वोशंट H, K क्वोशंट H।
सो ये चीज़ प्रूव कर रही है राजे। इन्हें याद रखना बहुत सौखा, पता किवें, जिवें मैं जो स्टूडेंट सी मैं याद रखता सी भी एच नाल एच कट्टिया गया की बचूगा जी बटा के, सो जी बटा के रह गया। पर ये बहुत फर्क आ, ये सिर्फ रट्टा जिहड़ा मैं तुहानूं लवा रहा, इदां नहीं आप बोल नहीं सकते। तुसीं इंटरव्यू वगैरह जाओगे उदों इदां नहीं याद रखोगे, तुसीं उत्थे नहीं दसोगे भी असीं ऐ याद रखी हुई है, क्योंकि नैगेटिव जाऊगा। तुसीं बस ये कहोगे एच नाल एच कट्टिया गया, बचा कि जी ते के, इधर जी ते के रह गया। सो ठीक है फिर। अच्छा हुण इहदे वास्ते की कुछ प्रूफ करना पैना, एच नूं के च नॉर्मल ताकि के क्वेश्चन एच मीनिंगफुल होवे पहला। अच्छा सो इहदे वास्ते की है प्रूफ, नाउ एच इज नॉर्मल इन जी एंड के इज एनी सबग्रुप ऑफ जी नाउ के है जिहड़ा एक कंटेन किहदे च हो गया एच च, के कंटेन हो गया एच च, ਇਹਦਾ मतलब की होगा के इज नॉर्मल इन एच। मैं कल प्रूफ किया सी ਇਹਦਾ, उस प्रूफ की दोबारा इत्थे लोड़ नहीं हैगी, छोटे छोटे प्रूफ की लोड़ नहीं हैगी। मेन प्रूफ जिहड़ा करना वो ये आ भी के क्वेश्चन एच आ ये मीनिंगफुल आ, उस तो बाद ਇਹਦਾ नॉर्मल सबग्रुप आ, ठीक है। सो ਇਹਦਾ मतलब की है के क्वेश्चन एच इज मीनिंगफुल, इन्हां दी एक चीज होगी, ठीक है। अच्छा हुण नाउ प्रूव करो, नाउ टू प्रूव की प्रूव करांगे कि जी क्वोशंट एच ओवर के क्वोशंट एच, ये ब्रैकेट नहीं पाई दी, इज मीनिंगफुल, यही चीज शो करनी है। फॉर दिस वी हैव टू प्रूव, फॉर दिस वी हैव टू प्रूव के क्वोशंट एच इज नॉर्मल इन जी क्वोशंट एच। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੇ क्वोशंट एच नॉर्मल सब ग्रुप जी क्वोशंट एच ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਮੈਪਿੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਣੀ ਆ, ਥਿਊਰਮ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਚ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕੇ क्वोशंट एच ਹੈਗਾ नॉर्मल सब ग्रुप। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ के क्वोशंट एच तो हो गया मीनिंगफुल। सो ये वास्ते आपां नूं के क्वोशंट एच नूं सब ग्रुप शो करना पैना। सब तो पहला किहड़ा एलीमेंट 100% के क्वोशंट एच च होगा, आइडेंटिटी एज के इज नॉन एम्प्टी एंड आइडेंटिटी बिलोंग्स टू के। ਇਹਦਾ मतलब एच नाल आइडेंटिटी ला दा जे मैं, ये किहदा एलिमेंट बन जाऊगा, ये एलिमेंट के दा, नीचे एलिमेंट एच दा। सो ਇਹਦਾ मतलब एच की हो जाऊगा, एच बिलोंग कर गया के क्वोशंट एच में, मतलब ये सारे क्वोशंट पाए एच हैगा। सो के क्वोशंट एच की हो गया नॉन एम्प्टी का हो गया। हुण ਇਹਨੂੰ सबसेट शो करो जी क्वोशंट एच ਦਾ, किवें करिए, नाउ के जी ਦਾ सबसेट आ कि इन्ना होने नाल आपां ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं भी के क्वोशंट एच जी क्वोशंट एच का सब ग्रुप होगा। हाँ कर सकते हैं, किवें देखो इहदे च कोई भी एलिमेंट लाओ, लेट एच ए बिलोंग्स टू के क्वोशंट एच, ए किहदा एलिमेंट होगा, के दा ऑब्वियसली। अच्छा ए के नूं बिलोंग करदा, के जी च कंटेन होंदा है, ए किहनूं बिलोंग कर गया, जी नूं। तो उस हिसाब ना देखिए फिर एच ए किहदा एलिमेंट बन गया, नीचे तो एच ही आनी है ये करके, पर ए किहनूं बिलोंग कर गया हुण जी नूं। सो एलिमेंट किहदा आ गया जी क्वोशंट एच दा, इत्थे ए किहनूं बिलोंग करदा सी के नूं, इहदा मतलब के क्वोशंट एच दा भी एलिमेंट आ। देखो एलिमेंट लिया किहदे चों सी, इहदे चों पहुंच गया जी क्वोशंट एच च, इहदा मतलब की हो गया के क्वोशंट एच सबसेट हो गया जी क्वोशंट एच दा। सो पहली चीज़ तो होगी भी नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया किहदा, जी क्वोशंट एच दा। हुण मैं इसे दा ही सब ग्रुप शो करना, शो करो
नाउ दो एलीमेंट ले लो एच ए ते एच बी किदे चो जिन्हों सब ग्रुप शो करना उहदे चो ते इन्हां दा एक एलीमेंट भी रख लिया दूसरे दा इनवर्स लगा लो की आऊगा अपने कोले एच ए एच बी इनवर्स बन जूगा ना ये इनवर्स नैगेटिव पावर थले आ जाएगी। अगले टाइप की होगा एच आ जिहड़ा की है नॉर्मल सब ग्रुप एच किहड़ा नॉर्मल सब ग्रुप आ जिथों तक मैनूं लगदा है ये हैगा की दिता होया इन्होंने एच एंड के बोथ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अच्छा ये जी दे एलीमेंट देखो हुण तुहानूं लगूगा ए ते बी है जिहड़े के दे एलीमेंट आ ते के है जिहड़ा जी च जांदा सो ये जी दे एलीमेंट भी हैगे आ एच नॉर्मल आ जी च ते इहदा मतलब इहनूं मैं लिख सकदा एच ए बी इनवर्स लिख सकदा। अच्छा ये एलीमेंट आ जिहड़ा ये किहदा देखो ए बी किहनूं बिलोंग करदे आ ए बी के नूं बिलोंग करदे आ ते ए बी इनवर्स किहनूं बिलोंग करूगा ऑब्वियसली के क्यों क्योंकि के की है सब ग्रुप ए बी इनवर्स के दा एलीमेंट है ये एलीमेंट हो गया के दा नाल की लगी है एच सो अपने कोल की हो गया पहले एलिमेंट ते दूसरे एलिमेंट पहला एलिमेंट में दूसरे का इनवर्स इनू बिलोंग कर गया है के क्वोशेंट एच इज सब ग्रुप ऑफ जी क्वोशेंट एच। हम प्रूव करना नॉर्मल सब ग्रुप किवें शो करिए वो भी सौखा ही है। नाउ लेट जी दे जिन्हों नॉर्मल सब ग्रुप शो करना उहदे चों एक एलिमेंट ले लो जिहदे विच शो करना उहदे विचों भी एक एलिमेंट ले लो इस एलिमेंट नूं मूरे रख लिया यही हुंदा ना जी एक्स जी इनवर्स जिहदे विच शो करना ओह ते उहदा इनवर्स अगे पिछे विचाले जिहदे विच शो करना उहदा एक एलिमेंट सो इहदा जिहदे विच शो करना वो विचाले रख लिया इन्हां दा इनवर्स अगे पिछे लाता राजे ये जो गौर नाल देखो ना ये जी एक्स जी इनवर्स ही है ये जी की जगह पे है ये चलो इनू आए करो इत्थे ए ले लो भावें इत्थे एच ए आ जाऊगा ऑब्वियसली क्योंकि क्वोशेंट ग्रुप आ उसे एलिमेंट ही ये जे इत्थे कोसेट हुण इनू गौर नाल देखो इनू की करना आपां प्रूव करना है किहनूं बिलोंग करे के क्वोशेंट एच नूं बिलोंग करे इधरली साइड तो शुरू हो जाओ की मैं इनू आए लिख सकदा एच नूं एक पासे कट के जी ए जी इनवर्स लिख सकता है हाँ 100% लिख सकता क्योंकि एच नॉर्मल है ये एलिमेंट जिहदे मर्जी होण पर जी दे तां एलिमेंट हैगे ही है ना कैपिटल जी दे सो अल्टीमेटली ये एलिमेंट देखना आपां कीदा की ये के दा एलिमेंट है हाँ ये के दा एलिमेंट है क्यों क्योंकि के है जिहड़ा नॉर्मल है जी च सो जे जी च नॉर्मल है ये एलिमेंट के दा अगे पिछे जी दे ही एलिमेंट लगे जिहदे च के नॉर्मल है सो इसका मतलब ये जी इनवर्स जी ए जी इनवर्स के नूं बिलोंग करूगा ते ये की है एच नीचे आ गया सो के एच नूं बिलोंग करदा इसका मतलब के एच क्वोशेंट एच की हो गया नॉर्मल हो गया जी क्वोशेंट एच च इसका मतलब जी क्वोशेंट एच ओवर के क्वोशेंट एच इज मीनिंगफुल। चलो जी फाइनली हजे आपां ये शो कीता भी ये जो भी है मीनिंगफुल है ते आपां नूं ये थ्योरम प्रूव करनी चाहिए है ठीक है। चलो फिर हुण थ्योरम शो करिए थ्योरम प्रूव करिए की आऊगा थ्योरम की स्टेटमेंट की सीगी ये पार्ट तुसीं इस थ्योरम दे विच करना बुक वाले ने भावें नहीं कीता इन्हें सीधा लिखता ये कहंदा बाय थ्योरम 3.2.5 पर तुसीं ऐ नहीं कर सकते सो इत्थे हुण आपां की करा नाउ टू प्रूव जी क्वोशेंट के आइसोमॉर्फिक टू जी क्वोशेंट एच के क्वोशेंट एच ये प्रूव करना किवें करिए फंडामेंटल थ्योरम की हेल्प नाल प्रूव करांगे। देखो मैं तुहानूं पहलां भी कहा सी कि मैपिंग जिधरों मर्जी तुसीं डिफाइन कर सकते हो पर क्योंकि आपां सारे ही है जिहड़े कह लो कि एक स्टूडेंट आ मैं भी विच ही एक चीज़ पेपर च थोड़ा जिहा दिमाग च रखनी पऊगी तुहानूं भी मैपिंग पेपर बुक च डिफाइन की हुई है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ टाइम बच जूगा पेपर च कई बारी ਤੁਹਾਨੂੰ लगता कि आप कर लाँगे जिमें मर्जी पर वो स्टैंडर्ड थ्योरमां जिहड़ियां नेमिंग थ्योरमां 5
इन्हां दे प्रूफ जिहे जे हैगे आ हरेक बुक च इहे जे ही दिते आ, उहदे पिछे कोई वजह भी है। दूसरे पासे दी जे कोई प्रूफ नूं बदलना चाहुंदे हो तो नहीं बदलदा इन्ना सौखा, तां करके सो थोड़ी जी मैपिंग ध्यान च रखियो भी किवें कीती सी। सो इत्थे मेरे अकॉर्डिंग आपां इहनूं इनपुट मानदे आ, ये सारे आउटपुट मानते हैं, करनल ये बन जाऊगा। इनपुट के नीचे करनल बनता होंगे, बस ये याद रखियो। सो डिफाइन मैप एफ जी कोशट एच लैके मैप करके जी कोशट के तक, ठीक है। हम डिफाइन करने वेले भी बहुत ध्यान रखना पैंदा, कई बार मैपिंग एवें ही बन जाती है बकवास। ये एलीमेंट किहे जे एच एक्स यह जे होणगे ना, तो हम मैपिंग डिफाइन करते टाइम एक चीज़ ये भी याद रखो कि आउटपुट आ जी ओदा इनपुट नाल लिंक होवे, ये ना होवे कि इत्थे एक्स ले रहा ते इधर इहदा एलिमेंट किहो होगा के ते ना की होगा वाई। मान लो वाई बिलोंग करदा जी नूं, हुण तुसीं गौर नाल देखो इन्हां च तां कोई लिंक ही नहीं हैगा। एक्स की जगह ते तुसीं 1 पाओगे, उधर की आऊगा, मान लो इत्थे ई पाता, उधर की आऊगा के वाई। इत्थे एक्स की जगह ए पता, उधर की आऊगा के वाई। हर बार उधर के वाई रह जाना, क्यों? क्योंकि लिंक ही नहीं बनाया तुसीं। ये तो कुछ कॉन्स्टेंट मैपिंग वर्गी बन गई, के वाई की जगह भावें इत्थे 1 लिख लेंदे, कॉन्स्टेंट मैपिंग बन गई। ये तो हर बार 1 नहीं आता। सो इत्थे तुसीं सोच के थोड़ा जिहा इत्थे के एक्स लिख दो, हुण लिंक बन गया। इधर एक्स च चेंज करोगे, उधर भी एक्स च चेंज करना पैना, इनपुट बदलोगे आउटपुट भी बदलनी पैनी है। सो एक्स भी बिलोंग करता दोनों केसेस च, इधर भी जी नूं बिलोंग करता। सो ये होगी मैपिंग। पर सब तो पहला आप चेक करांगे कि ये मैपिंग वैल डिफाइंड है, ठीक है। वैल डिफाइंड एफ इज वैल डिफाइंड, ये चेक करनी पैनी है। मतलब वैल डिफाइंड का मतलब की होंदा भी की एक इनपुट देण ते आउटपुट एक ही आउंदी है, किते 2 आउटपुट तो नहीं आई जांदियां, फिर तो फंक्शन ही नहीं रहना जो एक इनपुट ते आउटपुट 2 आ गई। सो ये चीज़ ध्यान रखनी पऊगी, एक इनपुट ते आउटपुट भी एक आ। सो वो चीज़ नूं देखो अपने कोले इनपुट एक रख लो। नाउ लेट इनपुट एक रख लो, आउटपुट देख लेने एच एक्स इज इक्वल टू एच वाई रख ली, एक्स वाई बिलोंग करते हैं जी, यही है ना इनपुट के एलिमेंट का एच एक्स एच वाई। अच्छा हुण ये कदों आपां एक चीज़ है कि आपां ये कदों ट्रू हुंदी है जदों एक्स वाई इनवर्स बिलोंग करता एच नूं, ये चीज़ ट्रू है। उस तो बाद एक्स वाई इनवर्स बिलोंग करके एच नूं, एच किहदे च कंटेन हुंदा के च। सो एक्स वाई इनवर्स किहनूं बिलोंग कर गया के नूं। पर ये कदों ट्रू हुंदी है जदों के एक्स इज इक्वल टू के वाई होवे, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। तो एक के एक्स की वैल्यू की होंदी है एफ एच एक्स, इत्थे एफ के एच वाई, के वाई की आउटपुट की आऊगी, देखो इत्थे वाई है तो इत्थे वाई, सो एफ एच वाई। देखो के एक्स की वैल्यू इत्थों यही आई ना, तो के वाई की वैल्यू इत्थों यही आऊगी। जानी कि इत्थों आप एक चीज़ तो देख सकते हैं कि एच एक्स एच वाई के जो बराबर आ गई तो आप एफ एच एक्स एफ एच वाई मतलब आउटपुट भी इक्वल आ गई, इनपुट इक्वल रखी तो आउटपुट भी इक्वल आ गई। ਇਹਦਾ मतलब एफ की है वैल डिफाइंड। राइट क्वेश्चन जे तुसीं इधर उधर वीडियो देखोगे वो कहेंगे कि वैल डिफाइंड होना ते 1-1 होना एको ही गल आ, पर वैल डिफाइंड होना 1-1 होना एको गल नहीं है। वैल डिफाइंड जब तुसीं शो करते हो तो एक्स इनपुट नूं बराबर रख के आउटपुट नूं इक्वल शो करते हैं। 1-1 जिहड़ी ਉਹਦੇ ਚ आउटपुट नूं इक्वल रखते हो ते प्रूव की करते हैं, प्रूव आप प्रूव करते हैं, इत्थे प्रूव की करते हैं x इक्वल टू y प्रूव करते हैं। मतलब पुट्ठा काम हुंदा हुण कई जिहड़ियां चीज़ां हुंदियां ना उत्थे वैल डिफाइंड ते 1-1 इकट्ठे शो कीते जा सकते हैं। मतलब वैल डिफाइंड ते 1-1 एक दूजे दे उल्ट हुंदे आ। देखो वैल डिफाइंड च इत्थों इत्थे पहुंचना, 1-1 च देखो तो इत्थों इत्थे पहुंचना,
मतलब पुट्ठा हो गया, ए मननी है, ए चक्कर नहीं। सो जे मान लो मैं यही प्रूव करदा इत्थे इफ एंड ओनली इफ, मतलब ए हुंदी तां ए हुंदी है, ए हुंदी तां ए हुंदी है, फिर वेल डिफाइंड भी शो हो गया, 1 1 भी उस टाइम ही शो हो गया। ठीक है, तो कई थ्योरमां च ऐ करदे आ, आपां भी करया करांगे। मतलब एक्स वाई बराबर मान लिया तो ए शो करता, ए बराबर मान लिया ए शो करता, इक्को टाइम ही। देखो किवें, जिवें मान लो ए चीज़ ट्रू होंगी कदों होगी, जो ये होगी। सो इत्थे मैं ये चीज़ पा सकता इफ एंड ओनली इफ, ए चीज़ ट्रू होगी तो ए होगी। हुण मान लो ए ट्रू होगी तो ए होगी, हाँ। जे मान लो वैसे इदा हुंदा नहीं, कई बार पता की है, इत्थे छड्डो होर कोई एग्जांपल, जिवें मैं ना ऐ करो, तुसीं एक मिनट वेट करो, कल जिहड़ी आपां थ्योरी कीती सी मे भी ना नहीं वो भी नहीं हो सकता, देख लेने अगे कोई थ्योरम वगैरह जे आ गई, क्योंकि ना ये होनी ही नहीं है। देखो सीधी जी गल है, शॉर्ट च दसदा, इत्थों इत्थे आ सकते हैं, हाँ आ सकते हैं, इत्थों इत्थे आ सकते हैं, आए नहीं आए एक बार, इत्थों इत्थे आ सकते हैं, इत्थों इत्थे आ सकते हैं। हुण देखो भी इत्थों इत्थे जा सकते हैं, क्यों हुण क्यों देखण लगे पुट्ठा, क्योंकि मैं इत्थों इत्थे पहुंचना 1 1 बनाउण वास्ते, आउटपुट नूं इक्वल मान के इनपुट नूं इक्वल शो करना, इत्थों इत्थे पहुंचना। देखो इत्थों इत्थे पहुंच सकते सी, इत्थों इत्थे भी आ सकदी, इत्थे आ सकदी, इत्थे आ जाना सी, गल खत्म हो गई सी। पर हुण जदों 1 1 शो करना होऊगा इहनूं तां इत्थों इत्थे आउणा पऊ, इत्थों इत्थे आउणा पऊ, इत्थों इत्थे आउणा पऊ, इत्थों इत्थे आउणा पऊगा, प्रूव हो जाऊगा। ते 1 1 प्रूव करन नूं होर कोई तरीका भी नहीं है, इत्थों इत्थे ही आउणा पैना। हुण ये चीज़ बहुत वधिया भी तुहाडे दिमाग 'च शायद ये आ जाए भी नहीं सर 1 1 ये स्टैप्स नूं छड्ड के कोई होर स्टैप्स होणगे, आपां उन्हां नूं वरत के 1 1 शो कर सकते हैं। नहीं, वैल डिफाइंड च जिहड़े स्टैप वरते गए आ 1 1 च भी उही वरते जाने हैं। सो ये चीज़ वधिया चैक हो रही है। देखो इत्थों इत्थे आ सकते सी, इत्थों इत्थे आ सकते, इत्थों इत्थे आ सकते, इत्थों इत्थे आ गए, वैल डिफाइंड हो गई। हुण देखो वापस जा सकते हैं, इत्थों 1 1 चैक हो जाता। हुण वैल डिफाइंड तो 1 1 है कोई एक दूजे का उल्टा कन्वर्स, इत्थों इत्थे आ सकते हैं, हाँ आ सकते हैं। देखो एफ एच एक्स जो एफ एच वाई के बराबर मैं मान के रख लूँगा, है ना, इत्थे मान के रख लिया। प्रूव की करना चाहना 1 1 वास्ते, 1 1 शो करना, प्रूव की करना एच एक्स इज इक्वल टू एच वाई, की करांगे आ चीज़ मनी हुई है, एफ एच एक्स की बराबर आओ, देखो के एक्स दे, ए की बराबर है देखो के वाई दे। देखो गौर नाल इत्थों इत्थे ही आ गया ना, के एक्स इज इक्वल टू के वाई, इत्थे की है के एक्स इज इक्वल टू के वाई। ठीक, उस तो बाद इस तो ये चीज़ लिख सकते हैं 100% लिख सकते हैं। देखो की होया एक्स वाई इनवर्स बिलोंग किन करदा के, पर इस तो बाद आ चीज़ लिख सकदा, जे मैं ये लिख सकदा हुंदा तां आ चीज़ भी लिखी गई सी, क्योंकि ये चीज़ जे ट्रू होगी आ तां होई पई है, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ थ्योरम सीगी। जे एक्स वाई इनवर्स एच नूं बिलोंग कर गए तो एच एक्स इज इक्वल टू एच वाई तो होया ही पिया। पर प्रॉब्लम यह है भी एच नूं क्यों बिलोंग करनगे, के एडा मान लो एक्स वाई इनवर्स इत्थे पिया, एच के च कंटेन हुंदा वो इत्थे पिया, एक्स वाई इनवर्स एच तो बाहर हो गया ना, हो सकता बिलोंग ही ना करता होवे, एच छोटा के बड़ा, हो सकता एक्स वाई इनवर्स के च, जरूरी थोड़ी एच च भी होणगे, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। पर जदों इत्थों इत्थे आए सी की फर्क सी, जदों इत्थों इत्थे आए सी एक्स वाई इनवर्स एच नूं बिलोंग करके सी, एच का के च सी ना, इस करके एक्स वाई इनवर्स पए तां के च ही है, एच छोटा सी तां एच तो एलीमेंट के च जा रहे सी, पर के तो एच च नहीं जा रहे। समझ लगदी है ना, जे सबसैट का एलीमेंट आ सैट नूं तां बिलोंग करूगा ही, सैट का एलीमेंट सबसैट च थोड़ी आ रहा। तो इत्थों इत्थे चले गए कोई प्रॉब्लम नहीं, इत्थों इत्थे चले गए कोई प्रॉब्लम नहीं, इत्थों इत्थे गए उदों प्रॉब्लम आ गई। सो इसका मतलब की है, इस तो बाद ये चीज़ नहीं मैं दस सकता भी इहनूं बिलोंग करूगा या नहीं करूगा, ये क्वेश्चन मार्क ही रह गया, क्योंकि एच छोटा के च, हाँ जे कोई एलीमेंट इत्थे पिया एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एच, वो 100% के दे अंदर ही आ, क्योंकि एच पूरे का पूरा के दे अंदर आ। समझ लगी इस चीज़ की? अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है, इसका मतलब वापस नहीं जा सकते आप, इत्थे नहीं पहुँच सके, इसका मतलब मैपिंग ये 1 1 नहीं हैगी। पर आपां नूं चाहीदी नहीं 1 1, आपां तां फंडामेंटल थ्योरम बनाउणा, फंडामेंटल थ्योरम वास्ते की चाहिदी हुंदी है, होमोमॉर्फिज्म ते ऑन टू।
सो वैल डिफाइंड तो करनी पैनी सी, तो वैल डिफाइंड हरेक जगह ही करी दी होंगी। तुसीं अलजबरा च देखोगे कुछ थ्योरमां च नहीं की हुई उन्हें, मेरे अकॉर्डिंग उत्थे भी करनी चाहिए सी, ठीक है। पर वो बहुत सौखियां राजे, जिवें मान लो ये है वैल डिफाइंड का मतलब की है, एक इनपुट तो एक आउटपुट। वैसे ये उही दिसी जाता होंगे, इत्थे भी उही दिसी जाता। वैसे तो एक्स बदलोगे तो यह भी बदल ही जानी है, एक्स की जगह 1 लिखोगे, इतने 2 लिखोगे इतने। पर कई बार प्रॉब्लम आती है राजे, कई बार इतने मान लो, ध्यान दो क्यों इन्ना क्यों चेक कर रहे हैं आप, एच ए जिहड़ी है वो हैगी है एच बी के बराबर, मतलब कोई सैट बनता 1 2 इदा हो जाता ना। मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया होया, आपां चेक भी कीता सीगा, जे किसी नूं याद होवे एच ऑल्टा एच के बराबर आ गया सी, एक सैट जिहा सीगा अपने कोले 1 प्लस माइनस ऑल्टा प्लस माइनस जे प्लस माइनस के, नहीं प्लस माइनस ऑल्टा बस प्लस माइनस 1 प्लस माइनस ऑल्टा, इहदे च एच ऑल्टा एच के बराबर ही है। पता नहीं कुछ सीगा सैट, एक बार चेक कर लियो एग्जांपल, मतलब ये कोसेट बराबर हो जाते हैं जिवें, हाँ यही सी आई थिंक एच जिहड़ा सैट सीगा उन्हें ये मन्निया सी, मैनूं लगदा प्लस माइनस 1 नहीं एच सीगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस ऑल्टा, एच यही सी आई थिंक, जी है जिहड़ा वो ये सीगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस ऑल्टा प्लस माइनस जे प्लस माइनस के, ਇਹਦਾ एच मान लिया सी प्लस माइनस 1 प्लस माइनस ऑल्टा, एच ऑल्टा जिहड़ा ये फिर एच के बराबर आ जाता है। ये चेक भी कर सकते हैं, और प्लस माइनस 1 ना ऑल्टा प्रोडक्ट की कि आऊगी प्लस माइनस ऑल्टा, ये प्रोडक्ट करोगे तो प्लस माइनस 1 बन जाना, यानी कि वो एच ही बन जाता। तो इदा हो सकता भी कोसेट डिफरेंट एलीमेंट नाल बने हुए ए ते बी नाल बने हुए एच के कोसेट इक्वल आ जाण, पर के ए ते के बी बराबर ना हो। देखो पंगा पै गया, के ए है जिहड़ा वो की हो गया, मान लो 2 3 है, ए हैगा मान लो 4 5 है, हो सकता पॉसिबल है। सो एफ एच ए किहदे ते मैप करूगा, है एच ए मैप करूगा के ए ते एफ एच बी नूं किहदे ते मैप करूगी मैपिंग के बी ते, पर एच ए आ तो ओदा एच बी के बराबर आ, की सी एच ए एच बी 1 2, ये तो 1 2 सेट है, ते के ए की है 2 3, के बी की है 4 5, एक में हो सकता है एक बारी 1 2 2 3 ते मैप करी जाता है, एक बारी 1 2 4 5 ते मैप करी जाता है, तो गलत मैपिंग होगी। सो इत्थे हो सकता सी ये गड़बड़, तां करके उन्हें चेक करके दिखाई है भी मैपिंग च इहो जी कोई गड़बड़ नहीं आउंदी, स्पेशल मैपिंग है। अच्छा वैल डिफाइंड हो गया। सो वैल डिफाइंड होने तो बाद होमोमॉर्फिज्म ते ऑन टू चेक करो, एफ इज होमोमॉर्फिज्म, किवें करिए, एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एक्स वाई दो एलिमेंट लो एच एक्स ते एच वाई, जी कोशेंट एच चो, एफ अप्लाई कर दो एच एक्स एच वाई की आऊगा, एच इधरों आ गया एक्स वाई, ऑब्वियसली एच एक्स वाई नाल एक पासे हो जाऊगा। मैपिंग की कह रही है कि मूरे के ला दो पीछे एक्स वाई रहने दो, मूरे के ला दो पीछे एक्स वाई। अच्छा फिर मैपिंग यही कह रही है ना, बस पीछे सेम एलिमेंट रह जाऊगा, मूरे के लग जाऊगा, के भी नॉर्मल आ, सो ये सेपरेट तो करूंगा ही, इथे के एक्स की जगह पे एफ एच एक्स बन गया, के वाई की जगह पे एफ एच वाई बन गया। सो अपने को देखो एच एक्स ते एच वाई सेपरेट हो गए, सो एफ की होगी होमोमॉर्फिज्म। हुण की रहेगा कल्ला ऑन टू प्रूव कर दो, ऑन टू वाला प्रूव करना थोड़ा जिहा आपको देखना पड़ेगा, एफ इज ऑन टू,
ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਓ y, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਉਣਾ। ਹੁਣ y ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਕੁਝ k t ਵਰਗਾ ਹੋਊਗਾ, t ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ g ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ t ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ h ਲਾ ਲਓ, ਕਿਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ, t ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਦਾ, g ਦਾ, ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ h, ਇਹ g ਕੁਐਸਚਨ h ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਹਦਾ, ਇਹਦਾ आ गया ना आपे एलिमेंट। हुण इस एलिमेंट नूं f च पुट करो कि है f h t ते आउटपुट की आऊगी, मैपिंग की कर दी h की जगह ते k कर देंदी है, बन जाऊगा k t किहदे बराबर आ y दे। देखो इहदे चों एक एलिमेंट लिया सीगा y, इहदे चों एलिमेंट किहड़ा बन गया h t, जिहड़ा किहदे ते मैप करदा y ते। सो f की हो गया ऑन टू, सो इसका मतलब मैपिंग का इपिमॉर्फिज्म होगी, इसका मतलब therefore एक मिनट, अरे पता नहीं नहीं राजा ना बदला करके थोड़ा जिहा मैनूं लगदा लाइट की प्रॉब्लम आ, पर इन्ना थोड़ा जिहा दिसता रही आ, तो काफ़ी हनेरा बदला करके ना थोड़ा जिहा देखने की प्रॉब्लम आ रही है। एच एक्स अच्छा ऑन टू होगी। हुण देयरफॉर ये जिहड़ी मैपिंग है एफ जिथों सीगी जी कोशेंट एच तो जी कोशेंट के तक इज एपीमॉर्फिज्म। एपीमॉर्फिज्म जदों होगी तो इसका मतलब की है बी ऑन टू सॉरी बाय फंडामेंटल थ्योरम की आऊगा जिहड़ी ओही गल इनपुट के थले कर्नल बन जाता हुंदा जी कोशेंट के है जिहड़ी आइसोमॉर्फिक हो जूगी जी कोशेंट एच दे, पर इहदे थले की आऊगा कर्नल ऑफ एफ आ जाएगा। फंडामेंटल थ्योरम यही कहती है इनपुट के थले कर्नल ला के ये बराबर कर दीदा होगा। अच्छा कर्नल ऑफ एफ की वैल्यू लभो हम किवें लभीए, बस एक ही थ्योरम करवानी सी, एक ही होनी है। कर्नल ऑफ एफ ये जो एलिमेंट लो किसी दे एलिमेंट एच एक्स है ना, जिहदे ते एफ लगाइए दूसरे ग्रुप की की बने आइडेंटिटी, यदि आइडेंटिटी की है के, ये ध्यान रखियो यदि आइडेंटिटी ये है। सो इत्थे आ गया एच एक्स, एफ एच एक्स की वैल्यू क्या होगी के एक्स इज इक्वल टू के, यही बन जाएगा ना। अच्छा इथों की आ गया एच एक्स, अच्छा इथों मैंने एक चीज पता लगती है भी एक्स ਇਹਦੇ अंदर चला गया, ठीक है, तां ये के ਦੇ बराबर होया, मतलब एक्स के दे अंदर गया होगा। हुण देखो ये एलिमेंट किहदा बन गया, एलिमेंट की है एच एक्स, किहदा जी कोशेंट एच दा, इनपुट का एलिमेंट ही लेना होंदा। सो इनपुट का एलिमेंट लिया सी आपां, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਫ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਆਇਡੈਂटिटी बनी, पर इथों ये चीज बनी। हुण एलिमेंट का ये जी कोशेंट एच दा ही है, पर प्रॉब्लम ये है कि एच एक्स है जिहड़ा ना ये जी कोशेंट एच दा चला गया, पर एक्स के विच होण करके एच एक्स है जिहड़ा वो के कोशेंट एच नूं भी बिलोंग करूगा। देखो एक्स है जिहड़ा जे के च होगा तो एच एक्स आ ऑब्वियसली के कोशेंट एच च भी होगा। सो इसे चीज नूं मैं थोड़ा जिहा बदल के लिखण लगा, एच एक्स है जिहड़ा जी कोशेंट एच दा चला गया, पर एच एक्स के कोशेंट एच च भी चला गया। सो इस तो बाद मैं इतना लिख सकता एच एक्स बिलोंग कर गया किनू जी कोशेंट एच इंटरसेक्शन के कोशेंट एच, पर आप प्रूव किया सी कि के कोशेंट एच जी कोशेंट एच का की है नॉर्मल सब ग्रुप ते सबसेट तो हुंदा ही है, फिर वो
जानी कि ए का सबसेट है तो इंटरसैक्शन है तो छोटा सेट रह जाता होगा। इसका मतलब की हो गया एच एक्स बिलोंग किनू कर गया के क्वेश्चन एच नू, क्योंकि छोटा वो इंटरसैक्शन बड़े तो छोटे जो इंटरसैक्शन किहदी हुंदी है छोटे दी। सो अल्टीमेटली एलीमेंट किहदे रहे सीगे जी क्वेश्चन एच दे, एलीमेंट कर्नल एफ किहड़े है एच एक्स दे, पर किनू बिलोंग करने वाले के क्वेश्चन एच नू, तो ये सेट किहदा हो गया के क्वेश्चन एच दे बराबर हो गया। सो शुरू वाली जिथे आप लिखा सी कर्नल एफ की जगह वैल्यू भर दो जी क्वेश्चन के, यही दिता होया ना जी क्वेश्चन के आइसोमॉर्फिक टू जी क्वेश्चन एच, इथे कर्नल एफ लिखा सी उसकी जगह भर दो के क्वेश्चन एच। ये तुहाडा प्रूफ हो गया थर्ड थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म होगी राजे। उस तो 3.2.5 अज मैं बैच प्रूव करती है थ्योरम। इस थर्ड थ्योरम तो सैकेंड थ्योरम तो जस्ट पहला 3.2.5 थ्योरम है जी तुम आपे कर लियो क्योंकि अज मैं बैच प्रूव करती है। जो थोड़ा जिहा अद्धा स्टैप का अननोन होया वो देख लियो, जो प्रॉब्लम आई मैंने पूछ लियो फिर मैं करवा दूंगा दोबारा। तो जी थ्योरम 3.2.8 है छड़ दो, 3.2.8 छड़ दो 165 पेज पे एवं ही है इक्विवेलेंस रिलेशन आइसोमॉर्फिज्म का। थ्योरम 3.2.9 है जी वो मैं करवाती सी पहला, तुहानूं याद होगा एक दिन ही मैं पहला ही करवाती सी, एक बार इहनूं गौर नाल देख लियो। हुण कल नूं मैं 3.2.10 थ्योरम करवाऊंगा, ठीक है। सो ये एक दो थ्योरम रह गई, दो लैक्चरां का काम रह गया होमोमॉर्फिज्म का, उस तो बाद मैं नालों नाल रिंग थ्योरी स्टार्ट कर देनी, ठीक है। फिर वो पर मेरी सलाह यह है भी करन वही बच्चे जिहड़े इन्नी क कैपेबिलिटी रखते हैं भी पेपर के नेड़े जाके दोबारा इनू कर सकन, क्योंकि एक बार बच्चे करते हैं बहुत चंगी तरह पेपर के नेड़े जाके उन्होंने तो रिंग थ्योरी होंगी नहीं, फिर ये कीती दा की फायदा, मैं ये कहना चाहना तुहानूं समझ लगी, तां नहीं मैं करवाता हूँ। सो रिंग थ्योरी सिर्फ उही बच्चे करन जिहड़े थोड़े जे तुहाडे चों हुंदे आ दो चार जिहड़े मूहरे मतलब कहिंदे आ भी असीं 100% कर सकते हैं, 100% पेपर भी कर सकते हैं उही। बाकी जिहड़ा एवरेज स्टूडेंट आ जिन्होंने आए हैं भी आप पास होना ठीक नंबर लैके वो ना करना, ठीक है, उन्होंने वास्ते नहीं है।